Bismillahirrahmanirrahim. What is a paraphrasing and what is a summarizing? And what is the difference between paraphrasing and summarizing? Are the both are a polar apart, or are the both are correlated to with the same concept? Let's see what are the things that we have discussed in today's lecture. First of all, we will discuss the difference between the paraphrasing and summarizing. What are the steps involved in paraphrasing and summarizing? At the third level, know how to avoid plagiarism. First of all, what is a paraphrase? Paraphrase, to paraphrase is to write something in your own word. Paraphrasing means where you have to define the things in your own words. This means you are bound to write in your own words. You have a book and you have some materials related to any topic, and you are bound to read that topic and write all the information that you understand while reading. आपके पास एक पैसेज है, उस पैसेज को आपने पढ़ा है और पढ़ने के बाद व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम दैट पैसेज, आपने क्या सीखा उससे, या आपको क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, उसे अगर आप अपने अल्फाज में पुट करते हैं तो दैट्स कंसिडर्ड एज पैराफ्रेजिंग. Suppose lecturers like to see you using paraphrasing in your writing because it demonstrates what you know and understand about their subject, because it is in your own words. If you are listening a lectures and while you are listening a lecture, you are writing with the same at the same time. You are writing because you are understanding some of the information that is being narrated by your teacher and by your lecturer, and understand you understand that point, and you paraphrase all the information in your own words. इसमें आप जो लेक्चर्स नोट करते हैं वो भी एक पैराफ्रेजिंग की ज़मरे में ही कंसीडर किया जाता है, पैराफ्रेजिंग के ज़मरे में ही आ रहा होता है. अमूमन हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे लिए ये होता है कि जब हम चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो हम उसे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, हम चीज़ों को जब पढ़ते हैं तब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उस अंडरस्टैंडिंग को अगर हम अपने अल्फाज में मेंशन कर दें, राइट कर दें, तो वो पैराफ्रेजिंग की शक्ल में आता है. तो मोस्ट ऑफ योर एकेडमिक रीडिंग टेक्स्ट आर मेड अप ऑफ पैराफ्रेजेस. ठीक है, any information in a paragraph that does not have a quotation mark and is बच्चे ज्यादा नहीं आए हुए. कोई और एनी फैसल आया है, अपने माइक मैंने उसको ऑफ कर दिया, दोबारा मत ऑन करना प्लीज. Most of your academic reading texts are made up of paraphrasing. Any information in a paragraph that does not have quotation mark and is referenced is either a paraphrase or a summary. आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो देखते हैं जिसके ऊपर कोटेशंस नहीं लिखी गई, तो वो दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो पैराफ्रेजिंग है या वहाँ पर समरी है. समरी क्या होता है? समरी एक ओवरव्यू होता है, एक क्रक्स होता है किसी भी टॉपिक का. पैराफ्रेजिंग वो होता है जो आपने पढ़ा होता है, उसे आपने अपने अल्फाज में बयान करना होता है. इन दोनों में डिफरेंस क्या पड़ता है, हम ये भी देखते हैं इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है आपको, कहता है यहाँ पर पैराफ्रेजिंग है क्या. यहाँ पर दो ऑथर्स ने डिफरेंट बातें कही हैं, और एक ही बात को दो मुख्तलिफ अंदाज में ढालना, यही पैराफ्रेजिंग है. मतलब एक कॉन्सेप्ट है, वन बेसिक कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट को मुख्तलिफ राइटर्स, मुख्तलिफ पर्सनस, मुख्तलिफ अंदाज के अंदर बयान करते हैं, और जब वो मुख्तलिफ अंदाज में बयान करते हैं, इट्स मीन वो पैराफ्रेजिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं. अब देखिए, दो डिफरेंट डेफिनेशन हैं, लेकिन दोनों की डेफिनेशन का एक्सप्लेन करने का पर्पस एक ही है, दोनों का मोटिव एक ही है, बट बोथ दे यूटिलाइज्ड different word while utilizing the different scenario, but they are directing, or they are hitting the one point, one topic. Students often experience difficulties writing acceptable paraphrases. In their studies of student essay writing problems, Brown and Smith observed that the most भाई बात सुने मेरी, आपको एक काम का हुआ क्यों नहीं कर रहे आप? Brown and Smith observed that the most common paraphrasing error made by students was that they only changed a few of the writer's words. पैराफ्रेजिंग का ये मतलब नहीं होता कि जिस आपने चंद एक लफ्ज उसमें से चेंज करने हैं और वो पैराफ्रेजिंग हो जाएगा, नहीं. They also noted that this practice was a particular problem with internet users who copied and pasted information from the websites.
अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बच्चे इंटरनेट यूज बहुत ज़्यादा करते हैं या जो इंटरनेट से ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चे चीज़ों को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और चीज़ को मेंशन कर देते हैं किसी वेबसाइट से, उस वेबसाइट से उठाकर, और वो समझते हैं कि हमने पैराफ्रेजिंग कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऊपर जो बात कही है, दोबारा यही बात रिपीट होने जा रही है। इवन if this paraphrase text is referenced, it is not acceptable practice as the word and sentence are also almost the same as the original text. Johnson and Jackson। ऊपर बयान किया ब्राउन एंड स्मिथ ने, उसने भी वही बात की है, इसने भी यही बात की है। कहते हैं यहाँ तक कि आप उस बात के लिए कोई रेफरेंस मेंशन कर दें, लेकिन वो बात पैराफ्रेजिंग नहीं होती, क्योंकि हमने ओरिजिनल टेक्स्ट से ही बातें उठाई होती हैं और उस जैसे ही आप कह लें कि चंद एक लफ्ज़ हमने चेंज कर दिए होते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमने पैराफ्रेजिंग कर दिया है। येलो जो है ये सेकंड आर्थर को प्रेजेंट कर रहा है और जो ग्रीन है ये फर्स्ट आर्थर को प्रेजेंट कर रहा है। कहने का पर्पस ये है कि दोनों सेम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल्स है एक पैराफ्रेजिंग की। मतलब you can express the same concept as expressed by the other peoples while utilizing the different words, while utilizing the different scenarios। आप वही बात दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं, इसे हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। एक बात को दो मुख्तलिफ अंदाजों में बयान करना, ये हमारे पास पैराफ्रेजिंग के ज़मरे में कंसिडर किया जाता है। पैराफ्रेजिंग है क्या हमारे सामने? कहते हैं सक्सेसफुल पैराफ्रेजिंग डिपेंड्स ऑन द राइटर्स एबिलिटी टू rephrase the original author's word into their own। जो हकीकत में जो टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट को अगर आप अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं तो वो पैराफ्रेजिंग है। बट आल्सो मेंटेन द सेम मीनिंग। इट्स मीन द कॉन्सेप्ट भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट उसमें से मिस या स्किप नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल बात है, उस एक्चुअल बात को आज जो मीनिंग है वो आपने कन्वे करना है, लेकिन वाइल यूटिलाइजिंग द डिफरेंट वर्ड। मुख्तलिफ अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए आप उस बात को कहेंगे, तो ये हमारे पास पैराफ्रेजिंग होगी। टू सिंपल वेज ऑफ पैराफ्रेजिंग आर टू यूज सिनोनिम्स एंड द पैसिव वॉइस। दो आसान तरीके हैं कि आप उसके लिए सिनोनिम इस्तेमाल कर दें लफ्ज़ों के लिए, या जुमले का पैसिव वॉइस बना दें। तो जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी आप उसे पैराफ्रेजिंग कर देंगे, और जब आप उसे सिनोनिम बनाएंगे तब भी आप उसे पैसिव वॉइस कर देंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लेता है ए। एग्जाम्पल ए लेता है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ यूएस रिसर्चर हैज कैरिड आउट ट्रायल्स ऑन अ न्यू वैकेंसीज, एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल कैन बी द काज ऑफ मैनी डिजीज। इसे कहता है सिनोनिम के साथ, उसे पैराफ्रेज क्या कहता है, अ टीम ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। यहाँ पे कहता है अ ग्रुप ऑफ यूएस रिसर्चर, उसने अ ग्रुप ऑफ यूएस रिसर्चर को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर आप कह लें इस रेड लाइन को उसने कन्वर्ट किस में कर दिया, अ टीम ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। इसे उसने ये समझ लें कि उसने ये कन्वर्ट कर दिया, उसे येलो कर दिया है। तो कहने का पर्पस ये है कि उसने यहाँ पर उसने उसे अ ग्रुप ऑफ यूएस रिसर्चर्स को प्रेजेंट किया है, लेकिन उसने यूएस रिसर्चर को उसने किसी और तरह से बयान कर दिया। जो रिसर्च करते हैं वो साइंटिस्ट भी होते हैं। उसने कहा अ टीम ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, यूएस को उसने अमेरिकन कह दिया, ग्रुप को उसने टीम कह दिया, रिसर्चर को उसने साइंटिस्ट कह दिया। इसमें ही पैराफ्रेज स्टेटमेंट व्हाइल यूटिलाइजिंग द सिनोनिम्स। ये पहला मेथड है। हैज कंडक्टेड, हैज कैरिड आउट, कैरिड आउट को उसने कंडक्टेड ले लिया। ट्रायल उसको उसने टेस्ट में ले लिया। ऑन अ न्यू वैकेंसीज, ऑन अ न्यू वैकेंसीज, ये चेंज उसने जो मेजर क्रक्स था उसने उसका इसका चेंज कर दिया। फिर एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल कैन बी द काज ऑफ मेनी डिजीज, एन अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग, ठीक है, लाइफस्टाइल को उसने वे ऑफ लिविंग में कर दिया। कैन रिजल्ट इन अ मल्टीट्यूड ऑफ इलनेस, या मेनी डिजीज को उसने मल्टीट्यूड डिजीज को उसने इलनेस की शक्ल में तब्दील कर दिया। इट्स मीन कि हम इंफॉर्मेशन को सिनोनिम इस्तेमाल करते हुए भी पैराफ्रेज कर सकते हैं। अब दूसरा उसने क्या किया है, यूजिंग अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया है। ट्रायल्स ऑन न्यू वैकेंसीज वर कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ यूएसए रिसर्चर। सेम है, उसने उसे पैराफ्रेज कर दिया, मतलब सेम टॉपिक को उसने उसका पैसिव वॉइस बनाकर उसे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर जो मैंने रेड कर दिया उसने ये पैसिव वॉइस बना दिया। मैनी डिजीज कैन बी काज्ड बाय एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये पूरे का पूरा आप कह लें कि ये पैसिव वॉइस है। उसने जस्ट कुछ ही चेंज किया, बस उसने स्ट्रक्चर चेंज किया है और उसने इसे पैराफ्रेज कर दिया। नीचे देखें, यूजिंग बोथ सिनोनिम एंड पैसिव वॉइस, टेस्ट ऑन अ न्यू वैकेंसीज वर कंडक्टेड बाय अ टीम ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। ठीक है, कुछ हिस्सा उसने उसमें पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर दिया, कुछ हिस्सा उसने वहां पर सिनोनिम का इस्तेमाल कर दिया। फिर अ मल्टीट्यूड ऑफ इलनेस कैन बी काज्ड बाय एन अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग, उसने आधा हिस्सा अगेन सिंपल उसने कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में, और हाफ उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव वॉइस में। तो कहने का पर्पस ये है कि पैराफ्रेज आप दो तरह से कर सकते हैं, सिनोनिम्स से भी कर सकते हैं और पैसिव वॉइस से भी कर सकते हैं।
फिर पैराफ्रेजिंग होती क्या है, कहते हैं प्रैक्टिस पैराफ्रेजिंग दीज सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स बाय यूजिंग सिनोनिम एंड और पैसिव वॉइस। यहाँ पर उसने 3 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, और वी नीड मोर प्रूफ दैट एक्टिव लर्निंग रियली वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशनली एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू शो द बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पर वी नीड मोर प्रूफ, तो ये वी नीड मोर प्रूफ, उसका आंसर उसने क्या लिख दिया, एडिशनल एविडेंस इज रिक्वायर्ड दैट एक्टिव लर्निंग रियली वर्क्स टू शो द बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग। कहते हैं जी कुछ और सबूत चाहिए हमें इस एक्टिव लर्निंग को साबित करने के लिए। तो अगेन उसने यहाँ पर आंसर्स भी हमने यहाँ पुट कर दिए हैं, लेकिन पैराफ्रेजिंग का मतलब हम 2 वे से कर सकते हैं, एक सिनोनिम लगाकर, दूसरा वहां पर आप वहां पर उसका पैसिव वॉइस बनाकर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखें स्टेप्स क्या है। फॉर ऑल पैराफ्रेजेस, कहता है जी पैराफ्रेजिंग में कीप द मीनिंग द सेम एज द ओरिजिनल राइटिंग, मीनिंग को सेम रखें, जैसे कि बिल्कुल एक ही बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा है कि चेंज मोस्ट ऑफ द वर्ड एक्सेप्ट फॉर टेक्निकल टर्म्स, जो वहाँ पर टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल हुई उनके अलावा बाकी सारे के सारे अल्फाज को चेंज कर दें। रीस्ट्रक्चर द सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस के पैटर्न को तब्दील कर दें, अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बना दें, पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस कर दें, ये भी कर दें ज़्यादा बेहतर है। ब्लेंड विद द सेंटेंस, यूज रिपोर्टिंग वर्ड्स, ठीक है, एक्टिव भी लगा दें पैसिव भी लगा दें, मिक्सर बना दें जुमलों का। फिर यूज स्ट्रॉन्ग एंड वीक आथर टू एक्नॉलेज द सोर्स, वहाँ पर राइटर्स का मेंशन करना जरूर बनाएं। फिर रेफरेंस दें, अगर वहाँ पर पुट करने बनते हैं, अगर आप मिल रहे हैं तो वहाँ पर रेफरेंस भी पुट कर दें, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहे तो फिर तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हम पुट कहाँ से करेंगे। स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले रीड द टेक्स्ट अ नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग्स, तब तक पैसेज को पढ़ते जाएं जब तक आप उसे अंडरस्टैंड नहीं करते। अंडरलाइन सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्ड्स, सीधा सीधा जो वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करें, दैट यू विल कीप इन योर पैराफ्रेज, जो अपने पैराफ्रेज में रख सकते हैं। सर्कल वर्ड्स दैट कुड बी एक्सचेंज फॉर सिनोनिम्स, जो आपने वर्ड सर्कल किए हैं जिन्हें अंडरलाइन किया है उनकी जगह पर आप सिनोनिम मेंशन कर सकते हैं। सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर दें, अगर सिंपल है तो उसे कंपाउंड की शक्ल में ले जाएं, कंपाउंड है तो कॉम्प्लेक्स की शक्ल में ले जाएं, सेंटेंस पैटर्न ही चेंज कर दें वहां पर। पुट इन योर इन टेक्स्ट रेफरेंस टू एक्नॉलेज द आथर, वहां पर अगर आपने कोई बात की है तो वहाँ राइटर का या आथर का रेफरेंस जरूर पुट करें ताकि पढ़ने वाला आसानी से बात को समझ सके। फिर रिवाइज, अपनी राइटिंग को रिवाइज करें और कंपेयर करें ओरिजिनल टेक्स्ट से, क्या ये बिल्कुल आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। ये था हमारे पास पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग के अंदर हमने करना क्या नहीं है, कहता है जी डोंट जस्ट चेंज अ कपल ऑफ वर्ड्स, सिर्फ चंद एक अल्फाज चेंज ना करें फ्रॉम योर इंफॉर्मेशन सोर्स एंड थिंक दैट इट इज एन एक्सेप्टेबल फ्रेजेस। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से अल्फाज चेंज कर देंगे तो आपकी बात एक्सेप्ट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर हमें रेफरेंस का ऐड करना बहुत जरूरी है, अगर हम नहीं ऐड करते तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। Don't just switch around sentence parts from your information sources and add a reference, then think that it is an acceptable phrase. Adding a reference makes no difference, either use or direct quote or in the change or the sentence significantly. अगर आपको ये लगता है कि आपने सेंटेंस के पार्ट के अंदर कुछ चेंज कर दिया और वहां पर रेफरेंस पुट कर दिया तो वो काफी होगा, ये काफी नहीं होगा, ठीक है। जरूरी है कि आप वहां पर इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से तब्दील करें। फिर पैचिंग और पैच वर्किंग से परहेज करें, मतलब कटिंग पेस्टिंग कॉपी पेस्टिंग ऐसी इंफॉर्मेशन वहां पुट करने से भी गुरेज करें ताकि आपका पैराफ्रेज जो है वो अच्छा सा हेल्दी सा दिखाई दे। नेक्स्ट हमारे पास है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग और समराइज ऑफ मटेरियल में बी यूज्ड टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ एन ऑथर्स वर्क। यहाँ पर हमें पैराफ्रेजिंग नहीं देनी, यहाँ पर हमें एक ओवरव्यू बयान करना है। आप कह लें कि एक आपने एक क्रक्स बयान प्रेजेंट करना है, यहाँ पर एक सीधा सीधा वर्ड्स बयान करने हैं जो आपने स्टोरी से, किसी नॉवल से, ड्रामे से या किसी पोइट्री के पीस ऑफ राइटिंग से आपने हासिल किए हैं। Because they are very brief outlines of arguments made, they are very useful when you want to indicate the support given for or against some positive or some position you are taking in your arguments. अगर आप उसकी समरी करते हैं तो समरी लिखते वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि उसकी पॉजिटिविटी और उसकी नेगेटिविटी जो उसने प्रेजेंट की है उसे सामने रखें ताकि आप अच्छी तरह से चीज़ों को यूटिलाइज कर सकें, अच्छी तरह उसे समझ सकें। फिर कहता है जी इन योर राइटिंग यू मे मेक अ समरी फ्रॉम वन और मोर पैराग्राफ्स, आप एक या दो पैसे से भी समरी बना सकते हैं। एन इंटायर आर्टिकल, पूरे के पूरे आर्टिकल की समरी बना सकते हैं। चैप्टर या कंप्लीट वर्क, पूरे के पूरे चैप्टर या कंप्लीट वर्क की समरी बना सकते हैं। इसी तरह हम पूरे थीसिस की भी समरी बनाते हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ रीडिंग्स विद सिमिलर आइडियाज, मुख्तलिफ
रीडिंग्स का इकट्ठा करके उनकी भी समरी बना सकते हैं. You can get an idea from your reading as to whether an author has used a direct quote or not. कि आपके author ने यहाँ पर direct quote इस्तेमाल की है कि नहीं की है. आप इसे भी कर सकते हैं, आपको ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को. कहने का मकसद ये है कि हमें अमूमन क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमने जो आर्टिकल पढ़ा है या हमने जो पेजेस पढ़े हैं या हमने कोई पीस ऑफ राइटिंग पढ़ा है, क्या उसे उसका पूरे का पूरा ओवरव्यू हमने दे दिया है. अगर तो दे दिया है तो फिर हमने वहाँ पर उसकी समरी बयान कर दी है. कहता है जी समरी क्या होती है, समराइजिंग क्या होता है. कहता है जी 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्स आर साइटेड एज एग्रीइंग विद द इंफॉर्मेशन. द सेंटेंस इज समरी ऑफ देयर फाइंडिंग्स. Authors are listed in alphabetic order separated by a semicolon. ठीक है, चीज़ों को उसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है और चीज़ें जो बनाई गई हैं तरतीब से उस सेमीकोलन के साथ में प्रेजेंट कर दिया है. दूसरा कहता है दिस वाज अ समरी फ्रॉम 4 पैराग्राफ. पहला कहता है कि ये जो ग्रीन कलर में है ये 3 पैराग्राफ की समरी है, और यहाँ पे ये जो पर्पल कलर में है ये कहता है 4 पैराग्राफ की समरी है. और यहाँ पर कह लें ये जो लाइट ग्रीन आप कह लेंगे, आप कह लें जी बिल्कुल टर्किश कलर जो है यहाँ पर ये आप कह लें कि 5 पैराग्राफ तो नहीं, एक पूरे के पूरे चैप्टर की समरी है. तो यहाँ पर उसने एग्जाम्पल्स के तौर पर पुट कर दी है कि अगर आपने 3 पैसेज की समरी बनानी है, 5 की बनानी है या पूरे के पूरे चैप्टर की समरी बनानी है, तो उसने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी यहाँ पर पुट किया है ताकि आपके लिए आसानी हो सके. समराइजिंग में हमें चीज़ें कौन सी याद रखनी है. कीप द मीनिंग एंड डिग्री ऑफ सर्टेनिटी द सेम एज ओरिजिनल राइटिंग. मीनिंग को भी बिल्कुल सेम रखें जैसा कि ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा गया है, और डिग्री जो वहाँ पर बताना चाह रहा है सर्टेनिटी की वो भी उसकी जो इंटेंसिटी है उसे भी कम मत करें. पुट द मेन आइडिया एंड की पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स. मेन बातें जो हैं वो अपने अल्फाज में वहाँ पर पुट कर दें, अपना क्रक्स मत लूज करें वहाँ पर. Expect that length of your summary will be very short compared to the original writing. ऐसा ना हो कि समरी जो आपका चैप्टर है वो 2 पेजेस पे है, आपकी समरी भी 2 पेजेस पे चली जाए तो फिर वो समरी नहीं रहेगी. You have to be concise, you have to be brief. आपको brief रहना है, concise रहना है. अगर आप नहीं रहते तो इसमें आप समरी प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. Blend with sentences, use reporting words. आप blend बना दें, मैंने पहले भी बताया था पैराफ्रेजिंग के अंदर भी. ब्लेंड मीन सिंपल है तो उसे कम्प्लेक्स में ले जाएं, कम्प्लेक्स है तो कंपाउंड बना दें. चीज़ों का कम्प्लेक्स ब्लेंड बना देंगे तो सेंटेंस तब भी कम रिक्वायर बढ़ेंगे. राइटर के एक नॉलेज के लिए वहाँ पर रेफरेंस ज़रूर मेंशन करें, इंफॉर्मेशन जहाँ से उठाई है उसे भी कोट करने की कोशिश करें. फिर स्टेप्स फॉर समरीज क्या होता है. स्किम रीड द टेक्स्ट. फिर स्किमिंग करनी है. नोट सब हेडिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ एंड टॉपिक सेंटेंस. स्किमिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई करें. जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उन्हें छोड़ दें, उन्हें स्किप कर दें. जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें वहाँ से उठाएं और उन्हें एक तरतीब के साथ लिखना शुरू कर दें. टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ें, डिक्शनरी का इस्तेमाल करें. मीनिंग्स नहीं क्लियर होते तो उन्हें अंडरस्टैंड करने, क्लैरिफाई करने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करें. डिफ़िकल्ट सिचुएशन या डिफ़िकल्ट टेक्स्ट को बार बार पढ़ें ताकि वो अंडरस्टैंड हो जाए. फिर अपने लिए नोट्स बनाएं, पॉइंट कर लें चीज़ों को और उन पॉइंट किए हुई चीज़ों को बाद में आप की पॉइंट की शक्ल में एक समरी की शक्ल में डाल दें. पुट योर टेक्स्ट अवे एंड राइट योर समरी फ्रॉम योर नोट्स. ओरिजिनल नोट्स से जो आपने अपने ज़ाती नोट्स बनाए थे उसे आप वहाँ पर उसकी समरी बनाएं. फिर रेफर बैक टू द ओरिजिनल टू इंश्योर योर समरी रिफ्लेक्ट्स द राइटर आइडियाज़ एंड ओपिनियन. अपनी राइटिंग को कंपेयर करके चेक करें कि ये बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट को प्रेजेंट करता है या नहीं करता. अगर नहीं करता तो इट मीन आपकी समरी में वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी पाई जा रही है. फिर हमें करना क्या नहीं है इसमें. डोंट डू दिस, डोंट सेक्रीफाइस क्लैरिटी. आप वहाँ पर क्लैरिटी को मत छोड़ें, क्लैरिटी का बहुत खास ख्याल रखें. अगर आपने डिटेल बहुत ज़्यादा पुट कर दी है तो वो अच्छी नहीं है. चीज़ों को कंसाइज रखें, चंद एक वर्ड्स के अंदर बयान करें और अपनी क्लैरिटी को लूज मत करें. फिर डोंट डू अ वन ऑफ समरी, यू नीड टू हैव अ सेवरल ट्रायल्स टू गुड समरी. ऐसा नहीं है कि एक ही बार लिखें तो आपने एक ही बार समरी सीख गए हैं. मुख्तलिफ ट्रायल्स करें, मुख्तलिफ अटैम्प्ट लें ताकि आप एक अच्छी समरी लिख सकें. कीप चेकिंग अगेंस्ट द ओरिजिनल टू इंश्योर दैट यू हैव मेंटेन्ड द मैसेज and capture the surety of the writers, how committed the writer is to their point or opinion. आप अपनी बात को जारी रखें, ठीक है,
और अपनी बात को जारी रखें। मैसेज जो राइटर ने प्रेजेंट किया है उसका मैसेज मेंटेन रहे, वहाँ पर उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। हाफ मैसेज कन्वे मत करें। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के अंदर से आधा मैसेज ना उठाएं, कंप्लीट मैसेज उठाएं ताकि बात आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। फिर आप कह लें जी हमने आज के लेक्चर में मेंशन किया है जी पैराफ्रेजिंग क्या है और समराइजिंग क्या है, और फिर हमने देखा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनके स्टेप्स क्या हैं, और हम इससे प्लेजरिज्म को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। प्लेजरिज्म को हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम चीज़ों को अपने अल्फाज में लिखेंगे, तो तब हम प्लेजरिज्म वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से हम प्लेजरिज्म को ऑफ नहीं कर सकते। So that's all from my side. If you have any question, you can ask. उसामा, अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।